वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इरेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन, इरेशनल नंबर्स का सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस बताया, जिसे आप इजली जो है चैनल्स को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.5 लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 1.5। See, the first question is classify the following numbers as rational or irrational। यानी जो नंबर्स दिए गए हैं उसे रेशनल और इरेशनल जो है क्लासिफाई करना है। एट फर्स्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 2 minus √5। Here you can see that 2 minus √5, 2 irrational and √5 is irrational. So difference of rational and irrational is irrational. So here we can write irrational. Now see second number. Second number is 3 plus √23 and minus 23. Here it can be write as 3 plus under √23 minus under √23, so it will be 3. So it can be write as irrational. And the third question is 2√7 by √7. Here √7 to √7 cancel, so it is 2. It means rational. As here rational, and it is also rational. And the fourth number question is 1 by √2. 1 by √2. 1 by √2, here 1 irrational but √2 is irrational, so it can be write as also irrational. Now the fifth question is 2 pi. Here pi is irrational, so rational and irrational will be irrational. तो इस प्रकार से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 minus √5 यानी रेशनल माइनस इरेशनल, 3 plus √3 माइनस √3 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 3 विल बी रेशनल, 2 √7 by 7 √7, so it can be right 7 to √7 cancel, 2 by 7 it may rational, and 1 by √2 is irrational, 2 pi is also irrational. Now see question number second. Question number second, simplify each of the following expression. The first is 3 plus √3 into 2 plus √2. अब देखिए, अब इसे सोल्व करना है तो यहाँ जो है हम यूज कर सकते हैं x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी कर दें। सब अलग अलग टर्म है, तो पहले हम x से a प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से भी a प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे,
इट मीन x के प्लेस पे है 3, a यानी 2 और b यानी √2, फिर y या हो गया √3, a यानी 2 और b यानी √2। अब मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 जार 6 आप प्लस 3√2 आप प्लस 2√3 आप प्लस √3 इंटू √2 यानी √6। ये हो गया आंसर। इसमें कोई एडेबल नहीं है, यानी इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें। सेकंड इज 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। अब देखें तो ये जो है वी कैन यूज, इट मीन वी कैन राइट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 3a स्क्वायर माइनस √3a स्क्वायर, यार 3a स्क्वायर 9 √3a स्क्वायर 3, इट इज इक्वल टू 6। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। हियर वी कैन यूज a plus b whole square, it is equal to a square plus b square plus 2ab. It means √5 square plus √2 square plus 2 into first term into second term. √5 square 5, √2 square 2 and 2 √5 2 are 10, 5 to 7 plus 2 √10, it will be answer. And similarly the fourth question is √5 minus √2 into √5 plus √2. Again here we can use same formula, a plus b into a minus b equal to a square minus b square, and so it is √5 square minus √2 square, √5 square 5 √2 square 2, so it is 3। तो इस तरह से या जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट now the next it means question number 3 is given that recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi equal to c by d. This seems the contradict of the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? So it is given that pi equal to c by d. Here c is circumference of the circle and d is diameter of the circle. It means here pi is the ratio between circumference of the circle and diameter of the circle. It means here we can write pi is the ratio between circumference and the diameter of the circle. But here the value of pi which we can use 22/7 or 3.14 approximately, या जो है एक प्रकार का यह 22/7 इसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू हम अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो है मतलब यह टर्मिनेटिंग नहीं होता, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिक्वेरिंग होता है। इसलिए यहाँ पाई के वैल्यू को जो है हम इरेशनल करते हैं, यानी पाई को इरेशनल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ यानी
पाई का जो वैल्यू 22/7 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर इट इज नॉन, लिख सकते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग, सो पाई इज इररेशनल। इस तरह से यह जो है पाई एक्चुअली जो है रेशनल नंबर नहीं है, इसे इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रखा जाता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4th। हियर क्वेश्चन नंबर 4, here we have to represent under root 9.3 a number line, यानी जो है अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है 9.3 cm का एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, इट इज ऑफ 9.3 cm। अब यहां से B से 1 cm C तक हम इसे प्रोड्यूस करें। सबसे पहले A to B हम 9.3 cm का लाइन सेगमेंट लिए, अब B से 1 cm और इसे प्रोड्यूस कर दिए। इस लाइन को हम और अधिक प्रोड्यूस कर देंगे आगे तक। अब हमें क्या करना है कि AC को बाइसेक्ट करना है। AC को बाइसेक्ट करेंगे, इसके लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, ऐसे A से या फिर C से ऐसे काटेंगे। इस तरह से इसका इंटरसेक्शन बनेगा और इस तरह से हम जो है AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। अब AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लिए तो OA को रेडियस मानकर हम एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। जो है यहाँ OA को रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिए। अब यहाँ 20 पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, 90 डिग्री का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे, यानी परपेंडिकुलर ले लेंगे जो सेमी सर्कल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यह BD ही जो है वह अंडर रूट 9.3 होगा। अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सो हम जो है कंपास के पॉइंट को D पे, पेंसिल को D पे रख के, यानी BD को एक आर्क मानेंगे और आर्क मानकर ऐसे हम यह लाइन सेगमेंट ले लें BE, यानी आर्क खींच लेंगे BE एंड हियर BE जो लाइन सेगमेंट पे है यह अंडर रूट 9.3 cm का होगा। वंस अगेन सबसे पहले हमें AB 9.3 cm का एक लाइन सेगमेंट लेना है। AB लाइन सेगमेंट को जो है 1 cm मोर प्रोड्यूस कर देना है, यानी B to C 1 cm हम प्रोड्यूस कर लिए। अब हमारे पास लाइन सेगमेंट हुआ AC। अब AC को बाइसेक्ट करेंगे जिसे O पॉइंट मिलेगा और OA या OC को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। फिर B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है जो सेमी सर्कल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और अब यह जो BD है यही अंडर रूट 9.3 है, लेकिन यह नंबर लाइन पे नहीं है, इसलिए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम BD के इक्वल एक आर्क लेके और BE कट कर लेंगे। इस प्रकार से यह जो BE है वह अंडर रूट 9.3 cm का होगा। Now see question number 5. The first number question, rationalize the denominators of the following. The first is 1/√7. So फर्स्ट लाइन में इसे कॉपी कर लेंगे। अब इसके जो रूट डेनोमिनेटर में जो नंबर है
इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। 80 √7 इंटू √7 7, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। सेकंड नंबर है 1/√7 माइनस √6। अब देखें यहाँ डिनोमिनेटर में दो टर्म है, तो पहले लाइन में तो कॉपी कर लें। अब इसे रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर की जो दो टर्म है उसके बीच का साइन चेंज कर देना है। इट मीन √7 आप प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसी नंबर से टर्म से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, इट मीन √7 प्लस √6 हो गया। और यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, यानी यह हो गया आपका a² अब माइनस हो गया b²। a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। इट मीन √7 प्लस √6, √7² 7, √6² 6, so it is √7 plus √6 by 1, it is equal to √7 plus √6 और ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से यह है क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इट इज 1/√5 प्लस √2। अब फिर इसे रेशनलाइज करना है तो फिर 1/√5 प्लस √2 है। फिर यहाँ देखें डिनोमिनेटर में जो दो टर्म है उनके बीच साइन जो है प्लस है, आप इसे चेंज कर दें, यानी √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करें और √5 माइनस √2 से डिवाइड कर दें। अब मल्टीप्लाई कर दें √5 माइनस √2 a प्लस बी ए माइनस बी, यानी √5² माइनस √2² हो गया, यानी यह हो जाएगा आपका √5 माइनस √2, यहाँ √5² 5, √2² 2, तो यह हो जाएगा आपका √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 यानी 3, यह हो गया आपका आंसर। सिमिलरली फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। इसको अब रेशनलाइज करना है तो 1/√7 माइनस 2, अब इसको √7 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करके √7 प्लस √2 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, इट मीन √7 प्लस √2 अब बाई √7 स्क्वायर माइनस √2 माइनस 2² यानी या a माइनस बी ए प्लस बी हो गया a² माइनस b²। इट मीन √7 प्लस √2 या √7² 7 √2² 4, so it is √7 प्लस √2 7 माइनस 4 यानी 3। इस तरह से यह जो है आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वह कंप्लीट हो गया। अब जो है यहाँ एनसीईआरटी के यह जो प्रॉब्लम्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वह सिर्फ एक बेस हैं या यहीं तक लिमिट नहीं है। अब इस बेस पे दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इसे इस टाइप के रेशनलाइजेशन से कंपेयर करके ए बी का वैल्यू भी फाइंड किया जाता है, जो ऑलरेडी जो है जिसके वीडियो जो है डाले गए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सारे जो है प्रॉब्लम्स भी आप सीख सकते हैं। फिर हम जो है आपको एक्सरसाइज 1.6 का सलूशन जो है देखेंगे। Now see exercise 1.6, see फर्स्ट नंबर। अब एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं या एग्जांपल्स हैं, इसमें इसके लिए भी प्रीवियस वीडियो जो है सबमिट किए जा चुके हैं, जिसे जो है आप यूट्यूब पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके इजीली देख सकते हैं। नाउ सी एक्सरसाइज 1.6। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 64 raised to power 1/2। अब यहाँ पावर 1/2 है तो इसे raised to power 2 के रूप में कन्वर्ट कर दे। इट मीन 8 raised to power 2
पावर 1/2, सो 8 रेस टू पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 रेस टू पावर 1 यानी 8, यह हो गया आपका आंसर। इसी तरह से सेकंड नंबर है, यह है आपका 32 रेस टू पावर 1/5। अब यहाँ पावर पे 1/5 है तो 32 के प्लेस पे हम 2 रेस टू पावर 5 लिख दें, 2 रेस टू पावर 5 रेस टू पावर 1/5 यानी 2 रेस टू पावर 5 इंटू 1/5, 5 to 5 कैंसिल, यानी आंसर हो गया 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज 125 रेस टू पावर 1/3। तो 125 के प्लेस पे हम 5 रेस टू पावर 3 इंटू 1/3 लिख दे, तो यह हो जाएगा 5 रेस टू पावर 3 इंटू 1/3, 3 to 3 कैंसिल, 5 रेस टू पावर 5 यानी 1 हो गया। इस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखें, यहाँ क्वेश्चन है 9 रेस टू पावर 3/2। तो अब जो है 9 के प्लेस पे हम 3 रेस टू पावर 2 लिख दें, पूरे का पावर 3/2 है, पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रेस टू पावर 2 इंटू 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, 3 रेस टू पावर 3 यानी 27 हो गया। इस तरह से जो है अब 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें। सेकंड नंबर है 32 रेस टू पावर 2/5। तो 32 के प्लेस पे हम 2 रेस टू पावर 5 लिख दें, पूरे का पावर है 2/5, तो 2 रेस टू पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 रेस टू पावर 2 यानी 4 हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 16 रेस टू पावर 3/4 यानी 2 रेस टू पावर 4 इंटू हो गया 3/4, 2 रेस टू पावर 4 इंटू 3/4, 4 to 4 कैंसिल, 2 रेस टू पावर 3 यानी 8 आंसर हो गया। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 125 रेस टू पावर -1/3 यानी 5 रेस टू पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 रेस टू पावर 1 यानी 1/5 हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट है 2 रेस टू पावर 2/3 और इंटू है 2 रेस टू पावर 1/5। अब चूंकि यहाँ दोनों का बेस सेम है तो पावर का सम फाइंड कर लेंगे, यानी ऐड हो जाता है, 2 रेस टू पावर हो गया 2/3 प्लस 1/5, दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर को ऐड कर देना है। तो 2 रेस टू पावर 3 और 5 का एलसीएम हो गया 5, 3 5 जार 5 2 जार 10 एंड 5 3 जार 3 1 जार 3 यानी 2 रेस टू पावर हो जाएगा 13/50। नाउ सी सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर इज 1/3 रेस टू पावर 3 होल पावर 27। तो यहाँ यह जो है 1/3 रेस टू पावर 7 3 जार 21 हो गया। और वी कैन राइट 1/3 रेस टू पावर 21 आल्सो, पूरे का पावर जो है 21 हो जाएगा। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन इज 11 रेस टू पावर 1/2 अब बाई 11 रेस टू पावर 1/4। अब देखें डिवाइड करते समय सेम बेस वाले पावर को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी 11 रेस टू पावर 1/2 माइनस 1/4। तो 11 रेस टू पावर 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, 2 1 जार 2 यानी 11 रेस टू पावर हो गया 1/4। इसी तरह से जो है इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्या है 7 रेस टू पावर 1/2 इंटू 8 रेस टू पावर 1/2। अब देखें तो यहाँ दोनों का बेस डिफर है लेकिन पावर सेम है, तो पावर सेम है तो यहाँ हम पावर को सेम रखेंगे, आप बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जार 56, या इसको हम चाहे तो रूट में भी लिख सकते हैं r/√56 और ये हो गया। इस तरह से यह एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हुआ। अब इस तरह के अदर जो क्वेश्चन है, अदर जो
प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को जो है दूसरे वीडियो के माध्यम से जो है सबमिट किया गया है और कुछ और भी क्वेश्चन सबमिट किए जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, थैंक्स।